My Retired Life Foundation, we start our second in series program of the Ancient Stories Retold. As you know, we started this program about a month before on recommendations of one of our members, Dr. V.N. Vishwanathan. And that was a very, very interesting concept that we would narrate a story, whatever we have read in our childhood, in a fable or in any of the religious scriptures, and the impact it has had or it had on our life. So we had a wonderful first program, and for anchoring the second program, I invite Krishnamani Madam. I request her to please take it over. Good evening, sir. Thank you. Good evening to everyone. सच में जो सर बोले वैसे फर्स्ट सेशन वाज रियली नाइस एंड ग्रेट स्टोरीज केम आउट. स्टोरी इज समथिंग दैट सब बोलते हैं वैसे चाइल्डहुड में भी लेके जाती है सबको. Like I remember in my this thing, we all know now when दादी या नानी रहते हैं तो they make us sit in line, all the cousins and all in the joint family, or when we go for vacations, give food in hand. तो हर एक का नंबर आता है, बाद में अपना नंबर आता है. वैसे at that time they don't just give the food, they tell us stories, and we don't even realize how much we ate because we are concentrating on the story. And finally they teachers asks us what is the moral of that story. So I remembered this in this concept. And even if we don't hear this thing, we all are used to Chandra Mama, Amar Chitrakatha, Tinkle, whatsoever it is. And we watch movies or serials also for story content mostly. So story is definitely appealing to at any age group for all of us. So it's nice that we have such a concept here. So to start with, for a successful program, विजय होने के लिए मैं विजय लक्ष्मी को invite करती हूँ अपनी story बताने के लिए. Thank you, Veena. Thank you so much. I'm audible, na? Yes, Viju, go on. Yeah. Today I'm going to talk on the real life story, but connected with the ancient story. We recently celebrated Women's Day. I would like to begin with an interesting story from ancient India. Two young women, Atre and Vasanti, meet by chance during a trip and start chatting. Atre tells Vasanti that she is traveling to the south in search of better education. Though she is a student at an extremely famous university in the north, her professor's preoccupation with his ongoing novel means he has little time to teach her anything of use. Vasanti agrees that this move makes perfect sense. These young women are not contemporary urban Indians. They were characters in an 8th century Sanskrit play, Uttaramacharita. बाय मिस्टेक म्यूट हो गई, 2 मिनट रुको, स्टार्ट अनम्यूट कर लो अपने आप को. मैं बस भरतभूषण उत्तरामचरित. अच्छा, I'll start. These young women are not contemporary urban Indians. They were characters in an 8th century Sanskrit play, Uttaramacharita, penned by the dramatist Bhavabhuti. Atre's original professor was Valmiki, who had recently become immersed in writing the Ramayana. A trip to the south meant a walk through hundreds of miles of forested land, braving constant threats from robbers, mysterious illnesses, and wild animals. However, this was a trip that Atre was very willing to make, hoping to learn more from southern Vedanta scholars like Agastya. Though Bhavabhuti's story is fictional, it was a mirror of ancient India. When society believed that if girls wanted to be admitted to Gurukuls, there was nothing stopping them from doing so. However, as society progressed, views regarding women's education became more regressive. Despite managing an entire household and its finance, society regarded education of women as disrespectable. In light of this anecdote, I would like to narrate a real-life story of a 15-year-old girl who could not complete her 10th because of the financial and family constraints. They were a family of 5 sisters along with parents. Father used to drink but had a decent job. Mother was also working but had to leave because of 5 children. As they were growing up, father passed away, leaving 5 daughters and wife behind with no money.
Luckily, they owned a Mada one-room kitchen house. Though her father wanted to sell off the house, the mother was strong and did not allow her husband to do so. After the father's death, the four of the sisters left their school and started doing odd jobs to keep the kitchen fire burning. They also put up their house on rent and went to live in the slums. This girl who was third daughter who was third in line, was good in studies and continued with her studies while helping her mother in babysitting and working as a part-time maid just to get two chapatis a day. After I'm just feeling, I'll just take little water. I'm not well. After she failed her SSC, she happened to meet one family who was very good and kind towards her. She started working in their house, babysitting their 3-year-old daughter. The lady of the house provided her with newspapers, magazines, and encouraged her to gather knowledge. The girl learned to cook and never ever grumbled about the work because she was very happy with that family. She managed the lady's house, took care of her daughter and son, including their studies and extracurricular activities. Meanwhile, they came back to their own flat from slum. Her elder sisters got married, and when they had children, she ensured that they were admitted to English medium schools. Today, all the children have grown up and working for reputed organizations just because of that girl who was educated till 10th and determined that though they could not get access to education, her nieces and nephews will not suffer. The lady of the house never treated her as a servant, but as a family member, taking her on vacations and introducing her to good things in life so that she could upgrade her family's lifestyle. She even taught her to invest wisely, thanks to which today that girl has her own savings. The bond between the two women was so strong that the girl declined offers for a high salaried work as she felt comfortable and respected in that lady's family. That 15-year-old girl today is a 55-year-old woman. All the children owe their success to her, including that lady's two children also, they owe their gratitude to her. Thanks to redevelopment, her one-room kitchen house has now become a 2 BHK on the 13th floor. She has left behind the poverty days, but not forgotten them, and still is humble and down to earth. She is still working for that lady as she feels a part of their family. The lady of the house is me, and the girl is none other than my governess, Ratna. We were destined to meet each other and enrich each other's lives for better. Every Women's Day, there are articles written on successful women, but we don't realize that in almost all our homes, we have one such woman who might be able to change her fortunes with a little help from us. So whenever possible, we should try to educate our house help, or at least ensure that we make her investment savvy so that she can secure hers and her family's future. Thank you. I'm sorry, since I'm not well. No. Yeah, I could not speak, You are speaking well and you did well. Very, very inspiring story. And having known you for over 3 decades, I know the entire story, how you treat her and how she is loyal to you. Because of that, you introduced to us also not as a maid always. You see, she's a family member and a governess. So it depends on how we give respect, get respect. Yes. And definitely, you have done a good thing. It will be passed on by her to others also. It's a chain created for good deeds. Much, Veena. Okay, yes. Thank you so much. Yeah, thank you. Thank you so much. Now we have R.K. Modi ji, who has always been giving us good stories, good poems, and good even singing also. Modi ji, आप तैयार हैं? जी, आवाज आ रही है? हाँ जी. जी. तो मैं शुरू करता हूँ. ये मेरे जीवन की घटना है 1980 की. पहले मैं रेलवे में काम करता था. वहाँ छोड़ करके मैंने ओएनजीसी ज्वाइन किया. तो यहाँ बम्बई में पोस्टिंग हुई, एलपीजी प्लांट बुरन में. तो यहाँ का वर्क और वहाँ के वर्क में वो 180 डिग्री का फ़र्क था. वहाँ जो था बहुत बड़ा वर्कशॉप था. आई वॉज मेंटेनिंग द मशीन्स. मैंने सोचा इसी टाइप का जब होगा, बट ये तो पेट्रोकेमिकल प्लांट्स था. तो
मुझे कुछ अटपटा लगने लगा कि मैं यहाँ रुक पाऊंगा कि नहीं रुक पाऊंगा, सफल होऊंगा कि नहीं। एनीवे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में 3-4 महीने मैंने काटे। दिसंबर में मैंने कहा कि चलो हम चलते हैं, फैमिली मेरी वहीं थी हाजत नगर बरेली में, रेलवे क्वार्टर में। मैंने कहा चलो वहाँ दोस्तों से भी सलाह करेंगे और वाइफ से भी सलाह करेंगे कि हम फिर इसको कंटिन्यू करें कि ना करें। मैं गया वहाँ, वाइफ से मैंने सलाह की, मैंने एक फ्रेंड से भी सलाह की, वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का फ्रेंड था मेरा। तो उसने एक कहानी सुनाई, हालांकि ये शायद वेद पुराण किसी से नहीं है, शायद कहीं की बनी हुई कहानी है। उन्होंने कहा देखो मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार देवराज इंद्र और भगवान में ये ठन गई कि कौन श्रेष्ठ है, कौन बड़ा है। तो दोनों अपने अपने तर्कों से करने लगे। एनीवे, ये चलता रहा। इंद्रदेव तो थोड़ा वो आप जानते हैं ना, थोड़ा कनिंग टाइप के है ना, तो उन्होंने कहा कि अच्छा मैं अब पृथ्वी पर बारिश ही नहीं करूंगा, तो सब त्राही करेंगे, मरने लगेंगे, देखें भगवान कैसे उसको बचाते हैं, रक्षा करते हैं। तो उनके अंदर में तो वरुण देवता था, उसने कहा एक बूंद जल भी पृथ्वी पर नहीं बरसना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, और बारिश बंद हो गई। चला कुछ महीने ऐसे ही, पृथ्वीवासियों में हाहाकार मच गया, त्राही मचने लगी। एक गांव के किसानों ने कहा कि ठीक है बारिश नहीं हो रही है, लेकिन हम लोगों को क्या घर बैठे वैसे ही बैठे रहना चाहिए। हमारा तो कर्म है खेती करना, अगर हम खेती नहीं करेंगे तो फिर आगे पीढ़ी को क्या बताएंगे कि हमें क्या करना है। बारिश हो या ना हो, हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। वो लोग हल बैल लेकर के गए और वहाँ खेती का काम शुरू कर दिया खेत में। उसको देखकर गांव के दूसरे व्यवसाय के लोग भी जमा हो गए। उन्होंने कहा किसान भाई ये क्या कर रहे हो, तुम्हें तो पता है बारिश होगी नहीं, तो ये तो बेकार मेहनत कर रहे हो। बोले ठीक है बारिश नहीं होगी हमें पता है, लेकिन हमारा कर्म जो है यही है, तो हम अपने कर्म करते रहेंगे। कर्म नहीं करेंगे तो हम भूल जाएंगे कि हम क्या करते हैं और हमारी अगली पीढ़ी को भी पता नहीं चलेगा। उन लोगों ने आपस में विचार किया कि ये किसान भाई तो ठीक बोल रहे हैं। वो लोग भी गए गांव में, जो बुनकर था कपड़े बुनने लगे, जो स्मिथ ब्लैक स्मिथ थे अपना लोहार का काम करने लगे, बढ़ई जो कारपेंटर जो था अपना लकड़ी का काम करने लगा। अब जब सब काम में लग गए तो देवराज इंद्र को बहुत आश्चर्य हुआ। बोले ये तो सब काम में लगे हुए हैं, अब क्या करना चाहिए। बोले इन लोगों को शायद मालूम नहीं है कि मैंने कई सालों तक वर्षा नहीं होगी, इनको बताना चाहिए जाके। वो गए किसान के पास गए, किसान से बोले तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, बारिश तो होगी नहीं, मैंने कहा है बारिश के देवता को कहा कि बारिश नहीं करने के लिए। तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा महाराज आपका कहना सही है, बारिश नहीं होगी कोई बात नहीं, लेकिन हमारा कर्म ही ईश्वर है, हम अपना कर्म हमें करते रहना है। फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये ऊपर वाले की इच्छा पे है, नहीं मिलेगा मिलेगा ये देखना उनका काम है, हमारा काम है कर्म करते रहना। ये सुनकर देवराज इंद्र को जो है बहुत लज्जा हुई। उन्होंने कहा देखो ये लोग अपने कर्म करने में लगे हुए हैं और हम आपस में लड़ रहे हैं, ये ठीक नहीं है। तो उन्होंने फिर वरुण देवता को बुलाया, वो बहुत प्रभावित हुए किसानों से, बहुत उन्होंने भी वरुण देवता को बुलाया, बोले नहीं पृथ्वी पर बारिश करो, और फिर बारिश भी सब जगह हरा भरा हो गया। तो इसमें उन्होंने और एक चीज जोड़ा कि देखो इसके अंदर में इसका मर्म क्या है कि हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। जैसे गीता में कहा है, वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी था ना, कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्मा ते संगोस्ते कर्माणि। तो तुमको अपना कर्म करते रहना है, फल की चिंता छोड़ दो, फल ऊपर वाला देख लेगा। उसकी बातों से मुझे बहुत प्रेरणा मिली, उनकी इस स्टोरी से, उनकी बातों से बहुत प्रेरणा मिली। मैं फैमिली लेके फिर 1 जनवरी 1981 को बम्बई में आ गया, और फिर उसी पे जो कर्मण्येवाधिकार से माँ फलेषु कदाचन उसको फॉलो करते हुए मैंने काम शुरू किया, और भगवान ने मुझे हर चीज दिया। मेरे कर्मों का फल जो दिया, मैंने जो कर्म किया उसका फल मिला।
मुझे जो जो प्रमोशन जिससे मिलना चाहिए था मिला, मेरे मेरे मेंटेनेंस में नाम होना चाहिए था, नाम मिला। तो इस तरह मुझे सब कुछ मिला और फिर 2004 में रिटायर हो गया। फैमिली भी यहाँ स्थापित हो गई, बच्चे भी पढ़ लिख करके यहाँ इंजीनियर वगैरह बन गए। तो मेरा कहने का ये जो है, ये प्रेरणा जो मुझे मिली मेरी जिंदगी में, वो उस टाइम तक ही नहीं रहा, ये अभी भी मेरा है कि काम करते रहो। जो तुमको काम मिला या जो तुम काम करना चाहते हो, काम करते रहो। सफलता नहीं, सफलता ऊपर वाले पे छोड़ दो और कर्म करोगे तो सफलता मिलेगी। बस यही मेरी स्टोरी है, यही। थैंक यू। बहुत 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 बढ़िया मोदी जी, एज यूजुअल समथिंग विद द मॉरल एज वेल एज चेंज। आपने जो बोला ट्रांसफर हुआ तो सोचते हर एक, हम भी सोचते हैं बैंक में थे तो एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो थोड़ी झिझक होती ही है, लेकिन एज यू सेड दिस इज द बेस्ट थिंग। भगवत गीता ने हमको सिखाया है, डू योर ड्यूटी, डोंट, अपने आप फल मिलते रहेगा इफ यू डोंट लुक एट इट। ठीक, दैट्स इट। थैंक थैंक यू सो मच मोदी जी। अब मैं आमंत्रित करती हूँ भरत भूषण शारदा को। नमस्कार मैडम। नमस्कार भरत जी, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, बढ़िया आ रही है। धन्यवाद। तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं पहली बार अपनी जिंदगी में इस मंच पर एक कहानी कहने जा रहा हूँ। ये पहला प्रयास है, अगर कोई गलती हो जाए तो एडवांस में माफी मांगता हूँ। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में शायद ही कोई आदमी ऐसा हो जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में ना सुना हो। हम सभी लोग उनके बारे में जानते हैं। छत्रपति शिवाजी के गुरु का नाम समर्थ गुरु रामदास था। बहुत ही विद्वान और गुणी व्यक्ति थे, बहुत ही सिंपल आदमी थे वो। और शिवाजी जब भी कोई कार्य करते थे उनसे सलाह लेने जरूर जाते थे। रामदास जी की एक खूबी थी, एक उनके अंदर विशेषता थी कि यदि किसी व्यक्ति में वो कोई गुण देखते थे तो उसे अपना गुरु मान लेते थे, चाहे वो व्यक्ति कितना ही छोटा या कितना ही बड़ा क्यों ना हो। इस तरह से उनके पास कई गुरु थे। ऐसा कहा जाता है कि एक बार छत्रपति शिवाजी की सवारी कहीं जा रही थी और रास्ते में एक मोची बैठा हुआ जूते गांठ रहा था। थोड़ी देर में समर्थ गुरु रामदास उधर से निकले और उन्होंने मोची से पूछा, क्यों भाई, क्या तुमने छत्रपति शिवाजी की सवारी देखी है? उस व्यक्ति ने इनकार करके सिर हिलाया और अपने जूते काटने में लगा रहा। रामदास जी ने कहा, ताज्जुब की बात है कि इतने बड़े छत्रपति की सवारी निकल गई और तुम्हें पता ही नहीं, तुम कह रहे हो मुझे पता ही नहीं। तो उसने कहा अपनी भाषा में कि अगर मैं छत्रपति की सवारी देखता, जूते क्या तू गांठ लेता? ये सुनकर के रामदास जी जो थे चौंक पड़े और एक मिनट को खामोश रह के उन्होंने सोचा कि यह आदमी अपने कार्य के प्रति इतना समर्पित है कि उसे पता ही नहीं कि उसके बाजू में से एक छत्रपति की सवारी निकल गई, बादशाह की सवारी निकल गई और वो अपने काम में लगा रहा। उसके इसी समर्पण से प्रेरित होकर रामदास जी ने उसको अपना गुरु बना लिया था। दूसरी बात यह कि आप सभी जानते हैं कि शिवाजी महाराज ने मुगलों से अपने जीवन में कई सालों तक युद्ध किया और उनका जीवन बहुत ही संघर्ष में बीता था। इतना युद्ध करते करते वो इतना परेशान हो गए थे कि एक बार उन्होंने संधि करने का विचार मन में लाए, आत्मसमर्पण करने की सोची और अपना ये निर्णय बताने के लिए वो रामदास जी के पास गए। रामदास जी ने जब उनकी बात सुनी, 1 मिनट के लिए विचार किया और उनसे एक ही वाक्य कहा और वो था, हिम्मत ने हारिए बिसारिए न राम। हिम्मत ने हारिए बिसारिए न राम। और यही वाक्य छत्रपति शिवाजी के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उन्होंने फिर से हिम्मत करी, अपनी सेना इकट्ठी करी और विजय हासिल करी। ये जो रामदास जी ने मंत्र दिया था, ये मंत्र उनके लिए ही नहीं था बल्कि हर पीढ़ी के, हर युग के सब लोगों के लिए है। हम लोग भगवान को, अपने इष्ट देव को याद रखें, हिम्मत बनाए रखें, तो कोई वजह नहीं कि हमें सफलता हासिल ना हो। ये सफलता का एक मूल मंत्र है जो हमें इस कहानी के माध्यम से मिलता है। ऐसी ही एक प्रेरणा मिलती है हमको महाभारत में द्रोणाचार्य के वचन से, जब वो अपने शिष्यों का
धनुर्विद्या की परीक्षा ले रहे थे, तब उन्होंने शिष्य से पूछा था कि तुमको क्या दिखाई दे रहा था, तो सिर्फ अर्जुन ने ही ये जवाब दिया था कि मुझे चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। इसीलिए उन्होंने उसको सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कह करके उसको सम्मानित किया था। तो अगर हमारे अपने काम के प्रति लगन है, अगर हमारी ईश्वर में विश्वास है, तो कोई वजह नहीं, हम थोड़ी देर के लिए तो असफल हो सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से सफलता हमारे कदम चूमेगी। इस विषय में एक छोटी सी घटना और आपसे बताना चाहूंगा कि एक वैज्ञानिक थे जो रात दिन किसी खोज में लगे रहते थे, प्रयास करते थे, हर बार फेल हो जाते, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 99 टाइम्स उन्होंने प्रयास किया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और 100वीं बार जाकर के वो उस फार्मूले को खोजने में सफल हो गए। तो इतना खुश हुए, बहुत खुश हुए। तब उनके एक साथी ने पूछा कि इतने सालों से प्रयास कर रहे हो, तब जाके छोटा सा फार्मूला खोज पाए हो, इसमें खुश होने की क्या बात है? इसका उत्तर उन्होंने दिया था कि मैं इसलिए खुश नहीं हूँ कि मैं एक फार्मूला खोजने में सफल हो गया, बल्कि मुझे खुशी इस बात की है कि मुझे 99 तरीके ऐसे पता लगे कि जिनसे मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता हूँ। ये थी उनकी पॉजिटिव थिंकिंग। और जब उनकी एक शिष्या ने उनसे कहा कि आज फार्मूला खोजने पर आपको कैसा लग रहा है, तो उन्होंने मुस्कुराकर यही कहा था कि जब एक महिला जीवन में पहली बार माँ बनती है और नर्स आके उसको कहती है बधाई हो, बेटा हुआ है, तब उसको जो खुशी होती है वही खुशी मुझे महसूस हो रही है। तो इस प्रकार साथियों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हारिए न हिम्मत, विसारिए न राम, ये हमारे जीवन में आगे बढ़ने का एक बहुत ही खूबसूरत मूल मंत्र है। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया भरत भूषण जी। जैसे मोदी जी ने कहा कि वर्क इज वर्शिप, सेम वे आपने भी उसी तरीके से आगे आए, बोले हिम्मत नहीं हारने का। और आपकी दोनों स्टोरीज, शिवाजी का भी और दूसरी भी, बहुत बढ़िया हुआ। हम भी कभी भी हिम्मत नहीं हारते, इसलिए तो इतनी दूर पहुंचे हैं। थैंक यू। नाउ इनवाइट वसंता to talk about her story. Good evening, Dr. Sengupta, the co-host Samantha Sengupta, and the anchor Veena and other friends. This is a story which I read in Speaking Tree about the tribal people. We always think they are nomadic, they don't understand the value of life or anything like that. Listen to this story. It is about the tribal story, a family with man and wife and a son, small son. The wife dies. The tribal group forces him, चलो दोबारा शादी करो. So he gets married. The first day wife को बोलता है, my objective, मेरा मकसद ये है कि this boy should call you mama. उसके लिए भी तुम्हें जो करना है करना ही चाहिए. This boy should call you mama. She agrees, and then she asks him, मैं इसके लिए क्या what are things he likes to eat, what type of dresses he wants, what type of toys, play, everything she asks him, and she does everything. Every day one sweet, one these things, every day she will cook, she will do, the boy will enjoy everything, but he refused to call her mama. He refused. He was not prepared to call her mama or amma, whatever it is. वो तो सीधा refuse कर दिया. So she was very dejected. So she went to the tribal group's head. उसके बाद जाके बोला था, I'm doing everything. This boy should call me mama. He is not doing that. मैं क्या करूँ? So he says, you bring 4 strands of hair from the lion's tail. She became very frightened. She said, from lion's tail you want me to bring 4 strands of hair? How can I bring? नहीं, तुम क्या करेगी मुझे पता नहीं. You have to bring. So she goes home, thinks several times. Then she starts following. You know, the lion never eats the leftover food. It always eats the fresh one. So from that time, the second day onwards, she starts following the lion, which starts from its den, goes to the place to eat its food and returns. She follows the lion from a far up distance and she watches what the lion is doing. एक secret जगह में चुपके चुपके क्या करता है? She sees that 3-4 days she does that, and the 5th day onwards she starts cooking some food, leaves the house before the lion, goes and keeps the food there, and goes and stands at the very corner and she's watching what the lion is doing. The lion comes, eats the food and goes back. And this continues for a few days.
Then in doing that, this lady is slowly reducing the distance between her and the lion. Thoda thoda karke, she is coming closer to the lion. And one day she starts feeding the lion by her hand. When the lion was eating, she plucks 4 strands of hair from the tail. And then she goes to the group, the tribal head. I have done this. Now, abhi bolo, abhi aur kya karne ka? He said, nothing. Tomorrow, that boy's birthday, you cook whatever food he likes to eat, and then give him the nicest dress, everything you do. That's more than enough. The next day, she gets up in the morning, keeps all the new dress, the toys and everything. She starts cooking for this boy. While cooking, the boy comes running, Mama! He comes running and shouts. She was so much surprised and bewildered. Who is calling me Mama? And the boy comes and hugs her very tight and says, Mama, Mama. And there were tears of joy in her eyes. And she looks at him and smiles. Oh, come. I have cooked nice food and everything. Your birthday. Cook, take bath, wear the new dress. Come. Choda, Mummy. And he hugs her again and says, Mummy, so in order that I should call you Mama, you took so much trouble. I'm the most luckiest boy on the earth. He tells her again, he hugs her. He says, please hug me, Mama. And she hugs him, and there were tears of joy in her eyes. And she's come and go, take bath. And they both sit, and the boy eats everything. She's very happy. This tells whether tribal people or anything, they also have some feelings, emotions, and they have persuasion in achieving their objective to get this one, to make this boy call her Mama. And also, she has made her husband very happy. You know, earlier in the last one, Alka said that I don't mind doing something which will make somebody happy, my husband. So she has made her husband also happy that this boy called her Mama. And of course, she hit 2 mangoes in 1 stone. And this is the persuasion. It is a story, says even the tribal people have their own emotions and everything. Thank you very much. Well said, Basanta. It's not only humans, even animals. They have emotions, and each and every one of us have emotions. And perseverance pays anyhow you have shown. आज सब लोग कर्म, वर्क, एवरीथिंग परसिवरेंस के बारे में करते हैं. अब सुनेंगे उषा दीदी को उनकी जुबानी. हेलो फ्रेंड्स, बीना मेरी आवाज आ रही है ठीक से? बीना? हाँ, आवाज आ रही है. आ रही है. आ रही है. Okay. So I'll ask you a question to everybody. Has it ever happened to you that someone was very rude to you for no reason? And you start to think, मैंने इनका क्या बिगाड़ा है? Why they are doing that to me? And on the other hand, someone is extremely polite and courteous, as if कि आपका दिल ही जीत लेंगे. Have you ever wondered why this happens? Why people behave so differently? My story today is about human behavior only. As I belong to Punjab, I have literally grew up with stories about Guru Nanak Dev Ji. He was the founder of Sikhism. There are thousands of anecdotes about him, but the story which had a huge impact on me is called Guru Nanak and the 2 villages. Guru Nanak used to travel throughout the world to spread the nectar of truth. He was always accompanied by 2 of his friends, Bala and Mardana. On one such journey, they reached a village and decided to spend the night there. As they were tired and hungry and they wanted to sleep and eat some food, they asked the villager for some food and a place to rest. But the people were very rude there and they did not offer anything. Guru Nanak and 2 of his friends just waited till morning and they started to leave. Guru Nanak turned and raised his hands towards the village and said, Vasde Raho, which in Punjabi means, may you all be blessed to stay where you are and prosper. This made Mardana very angry. He thought, why is Guruji blessing these horrible people? They didn't offer us anything and still they are blessing him
with prosperity and stable life. But he kept quiet, he didn't say anything. And they continued to travel. Soon enough, they reached another village. To their surprise, these people were very warm and sweet. They welcomed them with open arms and offered them food and sleep, room to sleep, and a place to spend the night also. In the morning, when it was time to leave, they asked the Gurujis for his blessings. As they came out of the village, Guruji turned, raised his hands and said, Ujad jao, meaning in Punjabi, it means you may be scattered to the four winds. Mardana noticed how Guruji had given different blessings to both the villages. This time, but he could not keep quiet. He protested. You bless those horrible people and curse these nice people. This is not fair, Guruji. Guruji explained in a soothing tone. People of the second village should be scattered so that they can spread their goodness all over the world. And people of the first village should keep to themselves. They should not spread their ego and hatred anywhere. The teachings of this story played a very significant part in my life. It told me how important it is, our behavior towards our fellow beings. We should all treat each other well and be treated in the same way. This not only makes them happy, but enriches you as well. How you behave has a huge impact on people and the society as a whole. Guru Nanak Dev Ji says, the one who does not treat others nicely will not be honored in the court of God. Even all of our rishis, munis have talked about this only. Like they say, so Gyaneshwar, Sant Gyaneshwar, Jyot se jyot jalate chalo, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो. Thanks. This is my story. Very nice, Usha ji. Actually, we don't understand the in-depth meaning of all the gurus, which when they say it. Only when we understand from them, we realize the meaning of such acts. Very well said. Goodness has to spread. Thank you, Bina. Thank you so much. Now I request Shashi ji to come forward. Shashi Bala Rastogi. For a change, she is also like Bharat Bhushan ji. Tell a story instead of Kavita. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. मैं शुरू करती हूँ. मेरी जो ये स्टोरी है ये बहुत ही ज़्यादा मेरे मन को छूती है और मेरा इस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है और मैंने इस स्टोरी को नाम दिया है रामायण की उर्मिला. पवित्र ग्रंथ रामायण के सभी पात्रों के नैतिकता के गुणों से मैं बहुत प्रभावित हूँ. राम, सीता और लक्ष्मण ने तो जनमानस पर गहरी छाप छोड़ी ही है, परंतु इन पूजनीय पात्रों से भी अधिक जिन्होंने मुझे प्रेरित किया है वह हैं सीता जी की छोटी बहन और लक्ष्मण जी की प्रिय पत्नी उर्मिला. राम जी के वनवास जाते समय सीता जी और लक्ष्मण ने भी अपने तर्कों से राम को मना लिया कि वो भी उनके साथ जाएंगे. उस समय उर्मिला ने भी लक्ष्मण के सामने साथ चलने के लिए कई तर्क रखे. तब लक्ष्मण जी ने यही कहा, उर्मिले, अगर तुम साथ चलोगी तो मेरा ध्यान भटक जाएगा और मैं अपने पिता तुल्य भाई और माता समान भाभी की सेवा मन लगाकर नहीं कर पाऊंगा. यह गूढ़ बात लक्ष्मण के भाई के प्रति प्रेम की पराकाष्ठा को दर्शाती है. भाई के साथ भाभी जा रही हैं पर उनके साथ उनकी पत्नी नहीं जा सकती. फिर उर्मिला को क्यों पति का बिछोह सहना पड़ा? उन बेचारी की तो इस कथानक में कोई भूमिका भी नहीं थी. फिर क्यों? क्योंकि
उनके पति की बलवती इच्छा अपने सुख से अधिक भाई की सेवा करने की थी, भाभी की सेवा करने की थी। पति की इच्छा का मान रखते हुए वह नतमस्तक हो गई। उनके प्रेम, विछोह की वेदना और दुख को हृदय में ही दबा कर रह गई। उनकी आज्ञा का पालन करना ही उनका धर्म हो गया। पति के पास तो उर्मिला थी ही नहीं, लेकिन उर्मिला के पास पति के संग बिताए सुखमय जीवन की कुछ मधुर स्मृतियों के अलावा कुछ भी नहीं था। उन्हें एक एक पल युग बीतने के समान लगता था। ठीक ही तो कहा गया है कि पति के बिना महिलाओं की सुख सुविधाओं का भी कोई मोल नहीं, और पति का संग जंगल में मंगल के समान हो जाता है। मुझे उर्मिला से एक विशेष लगाव है। वो मेरी प्रेरणा स्रोत रही हैं। हालांकि उनकी और मेरी कोई बराबरी नहीं है, अरे हो भी नहीं सकती। कहाँ वह एक महान ग्रंथ की महत्वपूर्ण पात्र और मैं शताब्दियों बाद आज के समाज की एक साधारण सी महिला। मगर उनके इस पति विछोह के दर्द को मैंने भी कुछ कुछ महसूस किया है। जी हाँ, मैं आपको संक्षिप्त में बताती हूँ। मार्च 1971 में हमारी शादी के एक सप्ताह बाद ही मेरे पति को नेवी में उनकी विशेष योग्यता के कारण बहुत ही विशेष प्रकार के शिप को कमीशन कराने के लिए रूस जाना पड़ा। अप्रैल में मेरी एमए की परीक्षाएं हो गईं। बीएड पहले ही कर चुकी थी, जॉब भी मिल रही थी, मगर नहीं, मायके में या ससुराल में बेटी या बहू से जॉब कराना, वो भी पति यहाँ नहीं, कैसे हो सकता था। और अब मेरे पास बचा था केवल इंतजार, इंतजार और इंतजार। बीच बीच में मायके ससुराल आती जाती रही। 2 माह तक कोई चिट्ठी नहीं, फोन में टंग कॉल लगे ना। दादी जी की उलाहनाएं और पड़ोस वाली आंटियों की प्रश्नवाचक नजरों से बातचीत शुरू हो गई कि भाई क्या बात है, कोई चिट्ठी नहीं, कोई फोन नहीं, बस मन में तनाव। माँ पापा और घनिष्ठ और ससुराल वाले वैसे ही परेशान। किससे कहूँ, 3 भाइयों में एक बहन कई बार सोचती थी कि रामायण की उर्मिला ने तो 14 सालों तक पति से बिछोह सहा, फिर मुझे भी कुछ और इंतजार करना ही होगा। उनका ध्यान करके बहुत हिम्मत मिलती थी। मेरे पति अगस्त में आने वाले थे, परंतु पहुंचे वो भी मुंबई दिसंबर में। घर आने के लिए छुट्टी ली तो भारत पाक युद्ध शुरू, उसकी घोषणा हो गई और लो हो गई छुट्टी कैंसिल। खैर जो हुआ सो हुआ। मुझे गर्व है कि मेरे पति ने भी उस विशेष शिप से उस युद्ध में अपनी देश की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप सभी को पाक पनडुब्बी गाजी के बारे में तो मालूम ही होगा। आजकल के परिप्रेक्ष्य में देखें तो तीनों सेनाओं के सैनिकों की उन पत्नियों के बारे में सोचती हूँ जिन्हें अचानक छुट्टी पर हों तो रिकॉल करके सीमाओं पर भेजा जाता है, और कुछ तो दुश्मनों की पकड़ में आ जाते हैं जहां उनके भविष्य का कुछ भी पता नहीं होता। कोविड के समय में हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिसकर्मी तथा अन्य सेवाओं में लगे लोग अपने कर्तव्यों के आगे परिवारों को भूले बैठे थे। पति के कर्तव्य पालन में उनकी पत्नियों के अप्रत्यक्ष योगदान को हम अनदेखा नहीं कर सकते। उन महिलाओं की मानसिक स्थिति को समझने के लिए महान ग्रंथ रामायण की उर्मिला का उदाहरण आज भी हमें प्रेरणा देता है। धन्यवाद। वेरी वेल सेड शशि जी, आप जो बोले वो सही बात है। रामायण मीन्स राम सीता हनुमान हो जाता है, उर्मिला की याद कोई करते नहीं है ज्यादा। Very rarely she is mentioned, and she has definitely given meaning to many women to keep waiting like you. And definitely we not only salute the forces but also their families. Yes. For their support to them. Yes. Okay, that was very nicely mentioned. Thank you, madam. अभी जवाहरलाल चौधरी जी हैं, अपना स्टोरी बताइए। हाँ जी, सबको मेरा नमस्कार।
मैं रामचरितमानस से एक प्रसंग उठाता हूँ। जब भगवान राम का वनवास हुआ तो जो राजपाट था वो उनके भाई भरत जी को देखना था, और भरत जी ने राम के अपने भाई भगवान राम के खड़ाओं को स्थापित करके उनको ही अपना इष्ट मान के राजकाज देखना शुरू किया। तो जब एक दिन जो कुल गुरु थे मुनि वशिष्ठ, वो जब उनके घर पर आए तो भरत जी ने उनसे कहा कि मुनिवर, आप तो बहुत ही त्रिकालदर्शी हैं, आपको तो सब मालूम है, फिर आपने ऐसी तारीख कैसे चुनी कि राज तिलक होने की, जिसमें उसके बाद ही उनका वनवास हो गया। तो मुनि वशिष्ठ ने जो बात कही कि होनहार भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधिहान। हानि लाभ, प्रॉफिट एंड लॉस, जीवन मरण, बर्थ एंड डेथ, यश अपयश, जो भी हमको फेम मिलता है या हमारी कोई बदनामी होती है, ये सब विधि के हाथ में है। विधि माने डेस्टिनी, और डेस्टिनी एक ऐसा रोल प्ले करती है कि हमको मालूम ही नहीं होता कि परमात्मा ने हमारे लिए क्या लिख रखा है, क्या सोच रखा है, क्या समीकरण बना रखा है। इस प्रकरण को मैंने अपने जीवन में कई बार अनुभव किया। अभी मोदी साहब ने अपने जीवन की बात बताई कि वो कैसे बम्बई आए। मैं भी ऐसे ही हुआ। मैं कानपुर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर था, लेकिन मेरी कुछ परिस्थितियां ऐसी थी घर की कि मैं वहां से निकल नहीं पाया। मेरा सिलेक्शन हो गया यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से और मेरा बम्बई में पोस्टिंग हुआ। मैंने बहुत चाहा कि मैं ना जाऊं, लेकिन ना चाहते हुए के बावजूद मुझे बम्बई आना पड़ा। और बम्बई आने के बाद जब मैं यहाँ ज्वाइन करने से एक बार पहले आया, यहाँ के जो मुखिया थे हमारे संगठन के, उनसे मैंने कहा कि देखिए, आपने इंटरव्यू के समय मुझे कहा था कि एडवांस इंक्रीमेंट देंगे, वो आपने नहीं दिया। आप और मुझे घर देंगे तो ही मैं आऊँगा। मेरा घर है कानपुर में, मैं वहीं रहता हूँ, तो मैं तो घर छोड़ के नहीं आऊँगा। तो उन्होंने कहा कि मिस्टर चौधरी, आई गिव यू एडवांस इंक्रीमेंट्स राइट नाउ and I assure you, you will get a house within 6 months time. So, but my condition is that you should join immediately. मैं वापस कानपुर गया। मैंने वहाँ बहुत कोशिश की कि मुझे रिज़ाइन न करना पड़े, मेरी गवर्नमेंट की सर्विस थी। मैंने रिज़ाइन नहीं किया, मुझे 2 साल की सरकार से छुट्टी मिल गई। मैं बम्बई आ गया, मैंने ज्वाइन किया, और ये डेस्टिनी थी कि मुझे यहाँ ले आई। ऐसे ही एक वाकया 1991 में हुआ, 1991 में। भारत सरकार की तरफ से एक स्कॉलरशिप मिलती है बहुत सीनियर अधिकारियों को, और मेरा उसमें चयन हो गया। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मुझे 3 देशों की यात्रा करके एक प्रोजेक्ट करने के लिए सुना गया। लेकिन विधि को कुछ और मंजूर था, डेस्टिनी को कुछ और मंजूर था। जिस दिन मुझे मेरा वीसा बनने को जाना था, उसके 1 हफ्ते पहले शायद मुझे दौरे पे जाना था सरकारी काम से राजकोट, और मैं ये बॉम्बे सेंट्रल से बैठा, और विरार के आगे जाने के बाद मुझे ट्रेन में ही हार्ट अटैक हो गया, और मैं वहाँ राजकोट पहुँच के मैं एडमिट हो गया। मेरी वाइफ यहाँ से गई, मैं घर में लौट के आया। मैं सोचता रहा कि ये जो हार्ट अटैक हुआ, इससे मेरा वो जो असाइनमेंट था यूएनडीपी वाला, वो मुझे छोड़ना पड़ा, क्योंकि मैं इस हालत में नहीं था कि मैं जा सकता। तो मैं सोचता रहा कि क्यों ऐसा हुआ। लेकिन मित्रों, विधि को कुछ और मंजूर था। जिस दिन मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आया, उसके 2 हफ्ते बाद
मेरी माँ का निधन हो गया कानपुर में, और मैं अकेला उनका पुत्र था। मुझे तो माँ की अंत्येष्टि करनी थी, तो मैं यूएनडीपी के प्रोग्राम में विदेश कैसे जाता। तो कुदरत, नियति और डेस्टिनी हमारे लिए क्या सोचती है, क्या नहीं सोचती है, ये हमको मालूम नहीं है। हमको बस परमात्मा के सभी निर्णय हमेशा ध्यान रखने चाहिए कि ये हमारे भले के लिए हैं। जब हमको कुछ मिलता है तो हम कभी ये नहीं सोचते कि वाई मी। जब नहीं मिलता है तो हम सोचते हैं वाई नॉट मी। हम वाई नॉट मी तो सोच लेते हैं, लेकिन वाई मी नहीं सोचते, क्योंकि वाई मी बिकॉज इट इज माई डेस्टिनी टू गेट समथिंग। थैंक यू वेरी मच। वेरी वेल सेड चौधरी जी। वही बोलते हैं ना, गॉड डजंट गिव यू व्हाट वी वांट, ही गिव्स व्हाट ही बेस्ट फॉर अस। जो होता है वो हम बाद में समझ लेते हैं, कभी समझ में नहीं आता है। As you said, भगवान ने ऐसे क्यों किया, व्हाई मी, एंड मोर ओवर एनी प्रॉब्लम्स देयर इज ऑलवेज अ सॉल्यूशन। सब इसके लिए भगवान सॉल्यूशन देते ही है। वेरी नाइस, हैव अ हेल्दी लाइफ। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट इंस्पायरिंग स्टोरी। अभी मैं बुलाऊंगी हमेशा डिम्पल्ड स्माइल के साथ रहने वाली चंद्रा सुब्रमण्यम। चंद्रा, आर यू देयर? थी, लॉगिन तो किया था उसने। चंद्रा, hello, there she is. I'm able to hear. I am able to hear you. Yeah, okay. Go Okay, ahead. mine is not a story as per se, but it is just a incident. I'm from Kerala. There is a temple named Guruvayur, and that there is one weighing scale. There are lots of stories regarding that, ancient stories. Those are What happened? Network. Hello. He doesn't even believe in God, but he had very bad stomachache. He was not ready to believe in God, but he called all people there, doctors, everyone, but no one was ready to help him, and his stomachache was not. He was not getting better. So one of the people told him, "Why can't you pray God, so that in that weighing scale is very helpful." So he was not ready. I don't even believe him. I will only give mud to that God. So like that, and it so happened because not able to hear me. Yeah, in between you're off. Network issue है लगता है. Continue, but don't worry. Okay. So it stomachache became all right, and he went to the temple with the weighing scale, and he sat on it. He was offering God all his jewelry, that and all. The weighing scale was not moving, and at the end they asked him, "What you really wanted to give God?" And being a king, he was very ashamed to say that he wanted to give mud. But he at last told the people he wanted to give mud, and they kept the mud, and the weighing scale was okay, and he offered the God like that, and it went off. So I've heard such stories, but I saw it with my own eyes when I went there once.
one lady was trying to weigh herself with kacha kela and all. The weighing scale was not moving. At last they asked her, what was your malat, in fact. She told it was only water. So they brought one big balti of water and the weighing scale board, and it was okay. It's only a subtle reminder for me that there is God always. So that's what it. Thank you very much. Very well said. If for people who are not knowing about this temple, there is a weighing scale, and the procedure is called as Tulabaram. So Yes. everybody who has belief and faith in him, which always pray when some calamity, some sickness, something comes in their family, and whatever the beauty of this is, he is not believing in richness or jewels or money or, like she said, mud. Whatever you wish for, you have to put that only when going for the weighing, and then only it fulfill. We have also seen, like personally, when I have been also to that temple, that small thing in red, I don't know what they call in English or Hindi, छोटे छोटे लाल लाल बटन जैसे रहते हैं. That is the famous thing there. So when you pray for that, you must give that only. Unless you give whatever you have prayed for, the weighing scale doesn't weigh equal to your weight. So this is the beauty of, it's all about faith and belief. So very nice story, Chandra. इतने अच्छे अच्छे लोगों के, right from Vijay Lakshmi to Modi ji to Bharat Bhushan ji to Usha, everybody gave very nice stories and all. सबका आनंद उठाया हमने. अभी आनंद जी के मुंह से स्टोरी सुनेंगे. आनंद सक्सेना जी. गुड इवनिंग मैडम. गुड इवनिंग टू ऑल. गुड इवनिंग. मेरी स्टोरी मेरी मदर मुझको बचपन में सुनाया करती थी, और शायद उनको उनकी मदर सुनाया करती थी, क्योंकि ये स्टोरी कहीं भी मुझे लिखी हुई नहीं मिली. बट अ वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी. दुपहरिया हिंदी में बोलते हैं that ladies they go to the jungle to pick this wooden things. लकड़ी बीनने जो जाती हैं उनको डुकरिया बोलते हैं. तो मैं वही वर्ड यूज कर रहा हूँ, तो आप लोग समझ जाइए कि वो 4 लेडीज जो जंगल में लकड़ियाँ बीनने गए जाती हैं. तो जब लकड़ियाँ बीन रही थी तो एक राजकुमार दूर से आता हुआ नजर आया, और वो जब घोड़े से उतरा तो उसके पैर में कांटा चिप गया, और वो कांटा निकालने के लिए झुका और उसने कांटा निकाल लिया. ये 4 जो डुकरियाँ थी लकड़ी बीनने वाली, तो ये आपस में कहने लगी, राजकुमार ने हमको सलाम किया है, दूसरी बोली हमको किया है, और आपस में झगड़ा करने लगी. तो फिर वो बोली अच्छा ठीक है, हम राजकुमार से पूछ लेते हैं उसने किसको सलाम किया. तो वो चारों राजकुमार के पास गई. तो राजकुमार को पूछा भाई आपने किसको सलाम किया है. तो राजकुमार बोला कि आप लोग हो कौन, मुझे आप बताइए. तो पहली बोली मैं प्यास हूँ, थर्स्ट. बोले इससे क्या होगा. बोली मेरी तपदृष्टि हो जाएगी तो आपको अच्छे अच्छे पेय पीने को मिलेंगे, अच्छे अच्छे ड्रिंक्स पीने को मिलेंगे, चांदी के बर्तनों में आप पानी पियेंगे, और जो जूस फ्रूट जूस एनीथिंग जो आपको चाहिएगा आपको मैं दे सकती हूँ. तो राजकुमार बोला ऐसा तो इसमें कुछ भी नहीं है. जब आदमी को प्यास लगती है तो गिलास की भी जरूरत नहीं पड़ती है, वो अंजलि में लेकर पानी कहीं भी पी सकता है. तो मैंने उनको तो सलाम नहीं किया. दूसरी बोली आप कौन है. बोला मैं भूख हूँ, हंगर. बोली ये क्या होता है. बोले मैं अगर कैपेसिटी रखूँ तो आपको 36 व्यंजन खाने को मिलेंगे, अच्छे अच्छे मिष्ठान, अच्छी अच्छी रेसिपीज, जो भी आपको पसंद है डिशेज आपके सामने हाजिर हो जाएंगी. जब भी आपको भूख लगे आप बोल सकते हैं. बोला ऐसा कुछ भी नहीं. जब आदमी को भूख लगती है तो रात का खाना खाया हुआ जो बासी रोटी वो भी खा लेता है और अपनी भूख मिटा लेता है. तो तुमको तो मैंने सलाम नहीं किया. तीसरी बोली आप कौन है. बोला मैं नींद हूँ. बोला ये क्या होती है. बोले अच्छे अच्छे बिस्तर मिलेंगे, अच्छे अच्छे बेड मिलेंगे, मखमली बिस्तर मिलेंगे, और आपको सारे साधन मिलेंगे सोने के, जो भी रहेगा
आपको ठंडक महसूस होगी तो ठंडक चाहिए, ठंडक चाहिए तो ठंडक महसूस कराऊंगी मैं, लाइक दैट। बोला ऐसा कुछ भी नहीं है। जब नींद आदमी को आती है तो पत्थर की बेंच पे भी सो जाता है, गर्मी में भी सो जाएगा, सर्दी में भी सो जाएगा। तो मैंने आपको तो सलाम नहीं किया। चौथी बोली क्या, आप कौन है? बोली मैं आस हूँ, होप। बोले ये क्या होती है? बोले लोग आशा करते हैं मेरा बेटा हो जाएगा, वो बड़ा होगा, उसको नौकरी मिलेगी, उसके बच्चे होंगे, या मेरा प्रमोशन हो जाएगा, या मैं किसी कंपटीशन में आ जाऊंगी, लाइक दैट। जो भी है, मतलब आदमी आस जो है ना, उस पे जो भी आस रहेगी तो मेरी वजह से वो उसको आशा बनी रहेगी, निराश नहीं होगा कभी। तो बोला यहाँ ये बात बहुत सही है। बोले मैंने आपको ही प्रणाम किया है, क्योंकि अगर आदमी के पास आस है तो उसको जिंदा रहने का एक उसको मकसद मिल जाता है, और आस पे ही सारी दुनिया जीवित है। कोई बीमार होता है, अगर उसको ये निराश हो जाए कि मैं तो ठीक हो ही नहीं पाऊंगा, तो वो समय से पहले ही उसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन उसको आस रहती है, डॉक्टर दवाई देता है तो वो इस आशा से खाता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। तो ये आस जो है ना, ये बहुत बड़ी चीज है और हमको निराशा से बचाती है। तो जहाँ आशा होती है वहां पर सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है, कॉन्फिडेंस होता है, और वहां पर आपकी विल पावर स्ट्रांग होती है। तो ये तीनों चीजें जो हैं ये इंटर रिलेटेड हैं। तो बोला ये जो है ना, आस जो है, मैंने उन्हीं को प्रणाम किया है। तो आस जो है ना, शी वॉज वेरी हैप्पी, और बोली तुमने मेरी 4 लोगों में जीत कराई है, और मैं तुमको आशीर्वाद देती हूँ, तुम जहां भी जाओगे तुम हर जगह जीतोगे। तो खैर वो तो कहानी हो गई, लेकिन मेन मुझको जो मॉरल और लेसन मिला वो यही मिला कि आशा जो है ना, इस जिंदगी में बहुत बड़ी चीज है। आदमी आशा के वजह से ही आगे बढ़ता है, इंस्पिरेशन मिलता है। अगर आदमी एक बार निराश हो गया, उसकी आशा टूट गई, तो फिर वो आदमी आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो मेरी यही स्टोरी है कि हम सबको आशावादी होना चाहिए, कभी निराश ना हो। वी शुड हैव विल पावर, स्ट्रॉन्ग विल पावर, सेल्फ कॉन्फिडेंस। दैट इज माय स्टोरी। थैंक यू वेरी मच। वेरी वेल सेड आनंद जी। उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो वी शुड ऑलवेज बी आशावादी ही रहना चाहिए। आज हमने सुना विजय लक्ष्मी से ग्रैटिट्यूड और ह्यूमैनिटी की रेस्पेक्ट करना, फिर मोदी जी से कर्म करते रहना, फिर भरत भूषण जी ने बताया कि हिम्मत और से है, बसंता ने बताया कि परसिवरेंस पेस, और उषा दीदी ने अपना गुरु नानक जी का सीख सुनाई, और शशि जी ने तो अनसुनी उर्मिला की कहानी सुना के हाउ वी शुड बी दिया, और चंद्रा ने बताया कि फेथ होना चाहिए, और चौधरी साहब ने अपने को डेस्टिनी जो होता है जब जब होना है वो तब तब होता है, उसमें हमेशा बिलीव रख के एक्सेप्ट गॉड्स विल बता दिया। और आनंद जी तो सबसे अच्छा बढ़िया आशावादी रहने को कह दिया है। बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद टू ऑल ऑफ यू। लाइक ऑल गुड थिंग्स कम टू एंड, today's storytelling session has come to an end with wonderful stories and lessons and morals. Thanks to all of you, and each narrator has been excellent. Thank you, Veena ji. Thank you for so good much. anchoring. Thank you